Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start revision of lesson number 6 geometry. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So all of you open your textbook. Now we will see what you had learned our last classes. So first what you had learned? First we had learned about a point. What is the point and how to draw point? Point is a small dotted made by a sharp pencil. Point is a small dot made by a sharp pencil. Now look at here, this is the point O that made by using a pencil, and this is a point O, and that point we are indicate by a letter. What? That point we are indicate by letter. Now look at here, that point we are indicate by letter O. Then after we had learned the line segment. What is the line segment? A line segment is the straight line path between the 2 points. A line segment is the straight path between the 2 points. The line segment is called line segment AB. This is the line segment. Line segment is the path between the 2 points. This is AB is the line segment. So look at here. Here I have A and B both point. That 2 point. Look at here. That 2 point is made by a one line. This is called line segment. So line segment, that is the sign of the line segment. This is how to read line segment AB. Then next is the line segment extending endless on a both side. Line segment endless on the both side are called lines. It does not have a beginning or end. Line segment not have a line not have a beginning point and not have a ending point. This is the endless and beginningless. This is called line. Now look at here XY. That XY 2 point on the line. XY, that 2 point on the line, that both side have a arrow, means this line is the endless. Both side have a arrow means this line have a endless and beginningless. So this is the sign of the line, and how to read line XY. How to read line XY. This is the line. Then ray. Ray have a beginning point but ray not have a ending point. Ray have a beginning point but ray not have a ending point. So now look at here AB. That A is the beginning point, B is the one point on the ray. B is the one point on the ray. Ray have a beginning point but ray not have a ending point. So this is ray. This is the sign of the ray. One side arrow means this is the ray. And how to read ray AB? This is read as ray AB. So this is ray. So then after we had learned the measuring of line segment. How to measuring line segment and how to draw line segment by using the ruler. By using the ruler we are measuring the line segment and draw also line segment. So this is the ruler. When we are measuring and draw a line segment, so we are start from the 0. From which we are start from the 0. So this is the line segment. Then after we had learned the angle. What is the angle? When the two rays meet at a point. When a two rays meet at a point, an angle is formed. It is marked by a small curve. This is the curve. When form that curve? When two rays meet at a one point. जब क्या होते हैं टू रे एक पॉइंट पे मिलती है तब वहाँ पे क्या फॉर्म होता है कर्व. दिस इज द कर्व. The angle formed by a ray B. Look at here. Here I have a two ray. One is the BA and second is the BC. That two ray meet at the point B. Meet at the point B. So there is formed the angle. What is formed? Angle. BA and BC are the two angles. Both
two are the arms and their ABC is here form the angle and B is called a vertex. B को क्या बोलेंगे हम? vertex बोलेंगे. Remember while naming an angle, the vertex is always in the center. जब हम किसी को क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं, तब हमारा जो वर्टेक्स होता है वो कैसे रहता है? सेंटर में रहता है. नाउ लुक एट हियर, दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. हाउ टू रीड? दिस इज रीड एज एंगल ABC. एंगल ABC हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC और एंगल CBA, ऐसे भी दोनों फॉर्म में हम एंगल को लिख सकते हैं. सो दिस इज एंगल. Then after we had learned the comparing of the angle. So now look at here. Here I have a bird. That bird's angle increasing. Okay. So now look at here first picture. That angle, that bird's beak is small. Then again increasing. Then again increasing. Then again increasing. So when increasing the bird's beak, then angle also increases. So this is comparison of the angle. Then after we had learned the types of angle. So which types of angle? Right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle and zero angle. So what is the right angle? When one horizontal and one vertical line meet at a straight. Look at here, one vertical line and one straight line है, ठीक है. वो क्या हो रही, मिल रही है और वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं. एंड राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. राइट एंगल कितने का रहता है? 90 डिग्री का रहता है. सो दिस इज द राइट एंगल. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इन द क्लॉक 3 o'clock and 9 o'clock, that time a clock hands in the horizontal and vertical lines. जब हमारे क्लॉक में 3 और 9 बजते हैं, तब हमारी जो क्या रहती है, हैंड्स रहती है वॉच की, वो एक वर्टिकल में रहती है और हॉरिजॉन्टल में रहती है. एक दोनों भी लाइन स्ट्रेट रहती है, मतलब तब क्या, कौन सा एंगल फॉर्म होता है? राइट एंगल. देन नेक्स्ट इज द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इज द लेस देन द राइट एंगल. एक्यूट एंगल ये राइट एंगल से छोटा होता है. एंड दिस इज द लेस देन 90 डिग्री. वो किससे लेस होता है? 90 डिग्री से लेस होता है. नाउ लुक एट हियर इन द क्लॉक 2 o'clock. देखो 3 o'clock का जो हमारा क्या है, एंगल कैसा है, और जब 2 o'clock बजे तो हमारे कैसा है एंगल. सो ये देखो 12 पे और 2 पे, तो ये एंगल हमारा छोटा हो गया है, मतलब 2 o'clock हमारा छोटा एंगल बन गया है. सो जब 2 o'clock होते हैं हमारे वॉच में, तो वो कौन सा एंगल फॉर्म करता है? एक्यूट एंगल फॉर्म करता है. देन ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज द ग्रेट देन द राइट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारे राइट एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है. सो लुक एट हियर इन द क्लॉक 5 o'clock. 5 o'clock का हमारा जो हैंड है क्लॉक का, वो क्या हो गया? एंगल बढ़ गया है, मतलब ये क्या है? ये राइट एंगल से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. देन नेक्स्ट इज द जीरो एंगल. जीरो एंगल मीन्स ओवरलैपिंग. व्हेन 2 एंगल इज द ओवरलैपिंग, that time form the zero angle. Now look at here in the watch 12 o'clock. That 12 o'clock both angle is the overlapping. एक के ऊपर एक एंगल से, मतलब ये हमारे क्लॉक में 12 बज गए, एक के ऊपर एक एंगल है, मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म हो गया है? जीरो एंगल फॉर्म हो गया है. जैसे 12 पे एक के ऊपर एक आया तो हमारा क्या हो गया है? जीरो एंगल हो गया. वैसे ही जब हमारे दोनों ही क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, तब दोनों भी 6 पे रहते हैं, मतलब 6:30 होता है, तब भी कौन सा एंगल फॉर्म होता है? जीरो एंगल फॉर्म होता है क्लॉक में. सो दिस इज द जीरो एंगल. देन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हेन द 2 एंगल इज द अपोजिट डायरेक्शन. जब दोनों भी एंगल कैसे रहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तब कौन सा एंगल फॉर्म होता है? दैट टाइम फॉर्म द
straight angle. In the clock, look at here, 12 o'clock, sorry, 6 o'clock. 6 o'clock, look at here, there have a both hand in the opposite direction. दोनों भी hands हमारे क्या है, opposite direction में है, मतलब वो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज अवर एंगल. विच एंगल? राइट एंगल, obtuse angle, acute angle, zero angle and straight angle. Right angle is the 90 degree, acute angle is the less than the right angle, and obtuse angle is the greater than the right angle. Zero angle means that both angle is the overlapping, and straight angle means both angle is the opposite direction. So this is angle. Then after we had learned the exercise 6.3. Then after we had learned the closed figures and polygon and quadrilateral. So what is the closed figure and open figure? The when angle is the closed from the all side, this is called closed figure, and open figure, one means figure is open from the any one side, two side. कहाँ से भी हमारी क्या हो सकती है, फिगर जो रहती है वो ओपन रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन फिगर्स बोलते हैं. देन आफ्टर वी हैड लर्न द ट्रायंगल. ट्रायंगल हैव अ 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स. जो हमारा ट्रायंगल होता है उसको 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 क्या रहते हैं, लाइन सेगमेंट रहते हैं. देन आफ्टर वी हैड लर्न द क्वाड्रिलेटर. सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वाड्रिलेटर? 4 साइड. क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है 4 साइड. क्वाड्री का मतलब 4, लैटर्स का मतलब साइड. जिस फिगर को 4 साइड रहते हैं, क्या रहते हैं, 4 साइड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर. सो विच लुक एट हियर, triangle, square, that both are the quadrilateral because that both have a 4 side. दोनों को कितने साइड है, 4 साइड है. तो हमारा रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल बोथ आर द क्वाड्रिलेटर. So this is we had learned our last classes. Then now our today's topic is the circle. So what is the circle and how to draw circle? A figure you can track is a closed figure. It has a round shape. It has a one curved side, no corner. It has called सर्कल. जिसको क्या नहीं रहता है, एक भी साइड नहीं रहती एंड कॉर्नर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सर्कल. उसको क्या बोलते हैं, सर्कल. नाउ लुक एट हियर, दिस इज वन सर्कल. ओके, ये क्या है, हमारा वन सर्कल है जो हमारी मतलब एक्स वाई है. एक्स वाई है मतलब हमारे 2 रेडियस जहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर्स. एंड वन साइड जो रहती है मतलब जो हमारे पॉइंट से आधी साइज रहती है उसको बोलते हैं रेडियस. उसको क्या बोलते हैं, रेडियस. सो ए बी एंड बी ओ, ये 2 हमारे रेडियस है, और ये भी है एक्स ओ और एक्स वाई, ये भी 2 हमारे क्या है, रेडियस है, और हमारी एक्स वाई पूरी क्या है, डायमीटर से. ए बी आर एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल. ए बी हमारे 2 पॉइंट है सर्कल में से. दे आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओ ए एंड ओ ए. they have a same distance from the O. they have same distance from the A. so, O मतलब ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि सर्कल है. सर्कल को कोई भी एंगल से हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस क्या आता है, सेम ही आता है. ओ ए दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ए बी line segment OA equal to line segment OB. line segment OA equal to line segment OB. line segment हमारी OA equal to है OB है, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है वो सभी एंगल से क्या होता है, सेम होता है. The fixed distance from the center and any point of the circle is called radius. जो हम सर्कल में से डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स का, मतलब ओ ए
ओ बी ये हमारी क्या है, रेडियस है हमारे सर्कल। क्या है, रेडियस है हमारी सर्कल से। जब हम सर्कल में 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर 1 पॉइंट से मतलब जो सेंटर पॉइंट से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे निकालते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन जो लाइन हमारे सेंट्रल से पास होके जाती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। सो नाउ लुक एट हियर, xy is the diameter, xy is the diameter of circle, line segment passing through center of the circle। अगर हमारी लाइन सेगमेंट कहाँ से पास हो रही है, सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, whose end point lie in the circle is called diameter। और पास होके देखो यहाँ पे एक्स वाई पास हो रहे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं उसको ही बोलते हैं डायमीटर्स बोलते हैं। मेजरिंग द रेडियस ओ ए एंड द डायमीटर एक्स वाई ऑफ द सर्कल, व्हाट यू डू नोटिस, क्या नोटिस किया है कि 2 रेडियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डायमीटर्स मिलता है। और हमें डायमीटर्स दिया है और रेडियस निकालना है तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्या करते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सो 2 रेडियस मतलब यहाँ पे हमारे 2 रेडियस है, एक्स वाई और ओ वाई है 2 रेडियस है। अगर दोनों को मिला देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। और हमारा क्या है, डायमीटर का हाफ हमारा क्या है, रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, उस समय डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द रूल। देन द लेंथ अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस। जो हमारी लेंथ है सर्कल की पूरी उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। देन कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड मतलब क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हु एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। जो कॉर्ड मतलब क्या होता है, हमारे सर्कल में से कोई भी लाइन है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। हमारी सर्कल में से सबसे लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, जो लाइन सर्कल में से पास होती है। यू कैन ड्रॉ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब हमने यहाँ पे ए पॉइंट लिया और ए पॉइंट से हम कहीं पे भी लाइन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉ अ कॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द circumference of the circle, but only one these chord passing through a center O। वन ही लाइन हमारे कहाँ से पास होगी, ओ से पास होगी। मेजरिंग द लाइन ऑफ द chord, you will find that the chord AB longest chord, but AB also has a diameters of the circle। जो हमारी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है हमारे सर्कल की। द डायमीटर्स इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो हमारी डायमीटर होती है वो हमारे सर्कल्स की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सो दिस इज द लाइन कॉर्ड। देन आफ्टर वी हैड लर्न द यूजिंग अ कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल, कंपास को यूज करके हमने सर्कल को ड्रॉ किया था। सो हाउ, नाउ लुक एट हियर, दिस इज द कंपास। ठीक है, कंपास को हम क्या करते हैं, स्केल से पहले हमें जितना भी साइज का सर्कल निकालना होता है वो हम क्या करते हैं, रूलर से हम उनकी साइज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी रूलर है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पे लेके जाएंगे। अगर मुझे 2 सेंटीमीटर का निकालना है तो मैं 2 तक, देखो 2 तक 2 लिया है मैंने इसमें। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे इसको रखते हैं बीच में और इसको यूज करके हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो ये कंपास है, कंपास के यूज से हम क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, होल सर्कल इज द
2 सेंटीमीटर। हमारा सर्कल कितने का हो गया है? 2 सेंटीमीटर का हो गया है। मतलब हमारी वन रेडियस हमारी कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हमने ऐसे ड्रॉ किया था। अगर हमें डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ से यहाँ अगर काउंट करेंगे तो कितना आता है? 4 सेंटीमीटर आता है। देखो यहाँ पे स्केल है, हम मेजर करके देखेंगे। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो कितना आता है? 2 आता है, और पूरा मेजर करेंगे तो 4 आता है। ठीक है। To draw a circle to given a radius and on a sheet paper use a compass. Let's draw a circle with a radius 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का निकाला है? 3 सेंटीमीटर। फिक्स द मेटल टिप ऑन द कंपास ऑन द रूलर ऑफ द जीरो। जो हमारे मेटल वाली पॉइंट रहता है वो हमें जीरो पे रखना पड़ता है। ये मेटल वाली पॉइंट दिख रही है सबको, ये वाली, वो हमें जीरो पे रखना पड़ता है। ओपन द कंपास, मेजर द 3 सेंटीमीटर। फिर हमें 3 सेंटीमीटर, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर का निकाला था। ऑन यूर रूलर द पेंसिल टिप शुड रीसेट ऑन द 3 सेंटीमीटर मार्क। मार्क एट अ पॉइंट O इन यूर नोटबुक एंड रेस द मेटल टिप्स। हम क्या करेंगे? एक पॉइंट निकालेंगे, उसको नाम देंगे, और फिर हम क्या करेंगे? इसको जो हमने पॉइंट निकाला है उस पे हमारा ये वाला मेटल वाला पार्ट रखेंगे, और हमारे इसको हम कैसे करेंगे? स्विंग करेंगे, मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। So this is the circle. Now look at here, exercise 6.6. Name the parts of circle. Now look at here, this is the circle. That middle point is called the point. जो हमारा सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? P. ये क्या है हमारा? सेंटर। सेंटर क्या है हमारा? P है। एनी वन रेडियस निकालनी थी हमने, क्या कौन सी निकाली है? पी क्यूब है, पी एम है, और ओ पी आर, ये हमारी 2 क्या है? रेडियस है। 1 निकालनी थी लेकिन मैंने 3 निकाले। डायमीटर कौन सी है हमारी? डायमीटर हमारी है, एक ही डायमीटर है, क्यू आर है। ठीक है। उसके बाद कोड कौन सी हमारी? एक्स वाई हमारी कोड है। ठीक है। So this is 6.6 exercise question number A. Then question number B is the measuring the radius of the following. हमें क्या करना था? मेजर करना था। नीचे जो भी दिया है, क्या दिया है? हमें सर्कल दिया है, उसकी लेंथ मेजर करनी। तो फर्स्ट सर्कल हमारा कितना था? 1.5 सेंटीमीटर का था। देन सेकंड क्या था हमारा? 1 सेंटीमीटर का था, और थर्ड 2 सेंटीमीटर था। फिर हमने सी क्वेश्चन में क्या किया है? हमारा रेडियस को काउंट किया था और फिर उसकी डायमीटर निकाली थी। सो फर्स्ट में कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। डायमीटर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 के साथ। सो कितने आएंगे? 2। डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन सेकंड में डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर था। सो 1.2 इंटू 2 इक्वल टू 2.4 हमारी क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने किया था। देन क्वेश्चन नंबर डी, फिलिंग द रेडियस और डायमीटर एज रिक्वायर्ड। हमें रेडियस दी है 1/2 मीन्स 1/2 दिया है, मतलब हाफ है सेंटीमीटर। सो हमें डायमीटर निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 5 सेंटीमीटर आता है। रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर मिलता है। यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 3 को तो हमें मिल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.6। देन
नेक्स्ट टॉपिक इज द मैथमेटिक्स ए. दिस आल्सो वी हैड ऑलरेडी लर्न. हमने क्वेश्चन नंबर ए में क्या किया था, यहाँ पे लाइन सेगमेंट थी, उसको हमने काउंट किया था तो कितना था 6.5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी. देन आफ्टर वी हैड लर्न द सर्कल. ओके, सर्कल में से हमें सेंटर पॉइंट, डायमीटर, रेडियस एंड कॉर्ड हमें निकालना था. ठीक है, सो सेंटर क्या है हमारा, ओ है. डायमीटर क्या है हमारी, सी डी है. रेडियस कौन सी है हमारी, ओ सी ओ डी एंड ओ ए, ये हमारी रेडियस है. फिर उसके बाद कॉर्ड कौन सी है हमारी, ए सी, नहीं तो सी ए है. तो ये हमने निकाला था. देन मेजरिंग द रेडियस डायमीटर ऑफ द अबव सर्कल. इसके हमें क्या मेजर करनी थी, रेडियस और डायमीटर निकालनी. तो हमने रेडियस निकाली थी, कितनी थी, 1.5 सेंटीमीटर थी. और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. सो 1.5 इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो हमारे डायमीटर कितनी है, 3 सेंटीमीटर के. देन क्वेश्चन नंबर 4, हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 24. हमें 24 क्या दी है, डायमीटर दी है, और हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था. तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. अगर हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 12 सेंटीमीटर मिलता है. नाउ यहाँ पे रेडियस दिए है 7.5 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर निकालने. तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस इंटू 2. सो 7.5 इंटू 2 कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा. कितने होगा, 15 सेंटीमीटर. देन आफ्टर वी हैड लर्न द क्वेश्चन नंबर 5. नेम इज द एंगल, से व्हाट दे इज इट. हम यहाँ पे एंगल के नाम देने थे और वो कौन सा एंगल है वो लिखना था. सबसे पहले एंगल है एंगल ए बी सी. वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है वो, क्योंकि राइट एंगल से छोटा है. देन सेकंड एंगल इज द एंगल ई एफ जी. ई एफ जी इज द ग्रेटर देन द राइट एंगल. ये राइट एंगल से बड़ा है, मतलब ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है. अभी ये इस एंगल को हम बराबर देखेंगे एंगल एम एन ओ को, तो वो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल. तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है. नाउ लुक एट हियर एक्स वाई जेड, देयर हैव अ बोथ एंगल इज द अपोजिट डायरेक्शन, मीन दिस इज द स्ट्रेट एंगल. ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है. सो दिस इज मैथमेटिक ए. देन मैथमेटिक बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द एमसीक्यूज, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, विच ऑफ दिस हैज अ फिक्स लेंथ. किसकी लाइन फिक्स रहती है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और ऑल ऑफ दिस. लाइन सेगमेंट की लाइन जो रहती है वो फिक्स रहती है, लाइन और रे की लाइन फिक्स नहीं रहती है. देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वर्टेक्स लाइन मीट हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एंगल फॉर्म. अगर हमारी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिल रहे हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे कौन से एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल. कौन से एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म व्हेन द टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट. अगर टू लाइन मीट हो रहे हैं तो वहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4. यहाँ पे देखो 2 लाइन है और यहाँ पे मिल रहे तो कितने एंगल फॉर्म हो गए, 4 एंगल. व्हेन द टू लाइन मीट एट द पॉइंट, that time form the right angle, sorry right angle, not here have a form of 4 angle. तो यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो गए, 4 एंगल फॉर्म हो गए. if two rays start from the point and go opposite direction, the angle is between them. अगर एक एंगल स्टार्ट हो रहा है और वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये एंगल है, समझ लो यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है उस समय, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है जब 2 एंगल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. देन आफ्टर वी हैड लर्न द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लुक एट हियर, दीपू स्केल इज ब्रोकन इनटू द 0 सेंटीमीटर मार्क. ही मेजरिंग द लाइन स्टार्ट फ्रॉम द 1 सेंटीमीटर मार्क. The other end of the line segment is the 4 centimeter 5 millimeter. What is the length of the
सेगमेंट इज द, देखो दीपू है, उसकी स्केल क्या हो गई, ब्रोकन हो गए, टूट गए, तो उसको लाइन निकालनी है। तो 0 उसका कट गया, तो उसने लाइन स्टार्ट किया है 1 सेंटीमीटर से। कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 सेंटीमीटर से, और उसने काउंट किया है 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तक काउंट किया है। तो उसकी जो लाइन है वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, तो हमें 1 में से क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो लाइन होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की हमारी लाइन होगी। ठीक है। सो नाउ लुक देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द एंगल इज लार्ज, XY, एंगल XY और एंगल MNO, दोनों में से हमारा एंगल कौन सा बड़ा है, XYZ, क्योंकि ये ऑप्टिस एंगल है और ये राइट एंगल है, और ये ऑप्टिस एंगल, सॉरी ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ये हमारे राइट एंगल से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। सो दिस इज अवर लेसन नंबर 6 geometry. So I hope all of you nicely understood. एंड वन थिंग, जो स्टूडेंट ने अभी तक प्रोजेक्ट सेंड नहीं किया है उनको एग्ज़ाम के पहले प्रोजेक्ट सेंड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।